Respected Principal Ma'am, my dear colleagues, our today's training topic is teaching and learning style, and we have with us our one of the eminent and qualified TGT teacher, Miss Sanjana, and she is going to talk us and tell us about this topic. So without wasting much time, please welcome with a huge warm of applause. Please. Good morning, everyone. Now, today I am very happy and glad that I have got this opportunity to present before you with a session. Now, the topic of my session is teaching and learning style. So before moving towards my topic, that is teaching and learning style, I want to discuss about what is learning, what is teaching, and what are the relationship between teaching and learning. Okay, first, what do you mean by learning? Anyone can say what is learning? Acquire knowledge. You learn something. Okay, thank you. Okay, learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skill, values, attitudes, and preferences. The ability to learn is possessed by human, animals, and some machines. तो लर्निंग क्या होता है? एक ऐसा एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब न्यू नॉलेज हम एब्जॉर्ब करते हैं, एक्वायर करते हैं, बिहेवियर, स्किल्स एज वेल एज values and attitudes also. So it is the ability which is learned not only by the humans only, but by the animals also and by the machines also. Learning केवल हम लोग केवल ह्यूमन ही नहीं करते हैं, बल्कि मशीन्स. अगर हम देखेंगे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होते हैं? बहुत सारे एक्टिविटीज़ या बहुत सारे कमांड दिए जाते हैं, वो लर्न करते हैं और फिर हम उनसे हेल्प लेते हैं. एनिमल्स ऑल्सो, हम अपने घरों में डॉग्स या फिर बहुत सारे और भी पेट एनिमल्स को रखते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, उनको कुछ अगर सिखाते हैं तो वो सीखते हैं. तो दैट्स वाई द एबिलिटी टू इज लर्न बाय ह्यूमन, एनिमल्स एज वेल एज सब मशीन. सो आफ्टर लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? नाउ सम characteristics are also there of learning. Characteristic means some features. Okay, important parts. Learning is a continuous process. Yes, it is continuous. Every day, every time we are learning, and everywhere also. It is not a fixed place that we have to learn. It is not only at school only we are learning, or not at home only. Everywhere we can learn. Learning is a change in behavior. Yes. How? अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारी बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं. अगर अच्छी बातों को सीखते हैं तो क्या होता है? हमारी बिहेवियर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. लर्निंग इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस. यस, ऐसा नहीं, इट इज नॉट अ फिक्स दैट एट अ फिक्स प्लेस वी हैव टू टेक द नॉलेज और वी हैव टू लर्न. एवरीवेयर इट इज यूनिवर्सल. एनीवेयर वी कैन टेक द लर्निंग प्रोसेस. ओके, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड. इट इज गोल ओरिएंटेड मतलब कुछ ना कुछ हमें, हमारा मकसद होता है. अगर हम कुछ सीखते हैं, बिना किसी मकसद के हम किसी चीज को भी नहीं सीखते. ऐसा नहीं बस सीखे और भूल गए, ऐसा नहीं होता. अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारा कुछ मोटिव रहता है कि उनके पीछे हम क्या, मतलब उससे क्या हम हेल्प ले रहे हैं, या मेरा वो कितना बेनिफिट आगे लाइफ में होने वाला है. Now, learning helps in achieving teaching learning objectives. Yes, learning हमें, मतलब हमारा जो आगे प्रोसेस होता है टीचिंग मेथड्स और लर्निंग मेथड, उसमें हेल्प करता है. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. यस, अगर हम कुछ सीखे हुए हैं तो ये जरूरी है कि हम दूसरे को भी सिखाते हैं. जैसे अगर कोई आर्ट टीचर होते हैं तो वो केवल अपने नॉलेज को अपने तक वो सीमित नहीं रखते. इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. नाउ नेक्स्ट इज what is teaching? Teaching is a process of educating person with theoretical concept and is a kind of knowledge transfer between a teacher and a student. तो teaching क्या होता है? मतलब एक प्रोसेस है किसी को सिखाना, किसी पर्सन को सिखाना. इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज
हम नॉलेज को ही क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। अगर हम क्लास में जाते हैं, हमें जो पता रहता है, हमें हमारा जो नॉलेज है, हम चाहते हैं कि वो नॉलेज हमारे स्टूडेंट को भी वो ट्रांसफर हो। सो इट इज अ knowledge transfer between a teacher and a student. So now according to B.O. Smith, teaching is a system of action intent to produce learning. Teaching एक मेथड होता है जिससे क्या होता है, लर्निंग को इंटेंट किया जाता है, बढ़ावा मिलता है। Now there are some elements also of teaching, teacher, student and education. अगर ये तीन नहीं रहेंगे तो क्या किसी भी तरह का टीचिंग जो प्रोसेस होता है दैट विल नॉट बी completed. So for the teaching, teacher is also necessary, student is also necessary, and between them education is the must compulsory. Next, characteristics of teaching. Now some features of teaching. Teaching is a complex social process. Now social process ये social होता है क्योंकि सभी मतलब पूरी समाज में ही हम कुछ सिखाना चाहते हैं। Complex सेंस क्योंकि एक सिंगल पर्सन या सिंगल लोगों से ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस कैसे होता है, क्योंकि अगर हम क्योंकि हम कुछ क्रिएटिविटी अपने टीचिंग में लाते हैं। अगर हम क्रिएटिविटी नहीं लाते हैं तो हमारा जो टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट कहलाता है। और साइंस क्योंकि अगर हम किसी चीज को बता रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस को लेते हैं, बायो या कोई भी साइंस पार्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स बनाते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस में लीव्स हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, तो अगर जब तक हम उनको डेमो देके वो बताते नहीं है, सो इट विल नॉट बी कंप्लीटेड। सो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। यस, इट इज अ प्रोफेशनल, क्योंकि हम टीचिंग से अर्न करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग इज अ डिजायर। डिजायर इसलिए क्योंकि अगर हमें मतलब हम अगर ये चाहेंगे ही नहीं, हमारी ये चाहत ही नहीं रहेगी कि हम किसी को पढ़ाएं, तो उसके बिना वो टीचिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट कहलाता है। इसलिए डिजायर होना, आपको वो मतलब चाहत होनी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विदाउट डिजायर इट विल नॉट बी कंप्लीटेड। टीचिंग एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव मीन्स टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन होता ही है, तभी वो टीचिंग कंप्लीट होता है। टीचिंग इन्वॉल्व वेरियस स्टाइल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टाइल ऑफ टीचिंग। सो Hi friends. one video is I want a to share a very motivational story with you. it is a motivational story on the importance of learning. मतलब हमारे लाइफ में लर्निंग क्यों जरूरी होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। सो प्लीज एंजॉय इट। Ramesh was a very hardworking woodcutter. He had given 5 years to the owner of the woodcutting factory. He used to work from 9 to 6 o'clock continuously without taking any breaks, except for a short lunch break of half an hour. He was too loyal to his owner. Now, as the work was increasing, the owner appointed a new What are the different learning styles? Hi friends, today I want to share a very motivational story with you. This story tells us about why the learning is so important to live a successful life. So let's begin. Once upon a time, there was a woodcutter named Ramesh. Ramesh was a very hardworking woodcutter. He had given 5 years to the owner of the woodcutting factory. He used to work from 9 to 6 o'clock continuously without taking any breaks, except for a short lunch break of half an hour. He was too loyal to his owner. Now, as the work was increasing, the owner appointed a new worker parallel to Ramesh. His name was Kishore. Kishore used to work lightly in comparison to Ramesh. He used to take short breaks of 5 minutes at every 1 hour interval. Seeing this, Ramesh was envious. Now came the time of increments. After a year, Ramesh, the very loyal woodcutter, was given an increment of only rupees 1500, whereas
Kishore, the new woodcutter, was given a good amount of increment of rupees 2,500. Shocked Ramesh got furious and went straight to his owner, barged his door and asked his owner in anger, "Sir, why am I given a lesser hike than Kishore? Do you know that Kishore does not even work as hard as I do?" Owner understands this case. Tells Ramesh that whenever in the evening he counts the number of logs, he finds that Kishore has cut greater amount of wood and hence his increment is given more. Ramesh gives his counter statement, unbelieving his owner and says, "Sir, this is impossible. Do you know I work without even taking a single break, and Kishore keeps taking break every hour and whiles his time away." Now the owner got confused, believing Ramesh's version of story and says, "Let's check out how Kishore makes this possible." Both of them go to check out Kishore. To their surprise, while taking a break, Kishore was rubbing his axe to a stone on the ground and was sharpening it. Thereby, when he used to strike his axe used to create a larger impact on the wood, and hence he could cut more wood than Ramesh, who was using the same blunt axe time and again. Now, they understood Kishore's secret well. So friends, likewise, learning new skills, reading books, practicing new technologies, and enhancing knowledge of our streams help us do our work smartly and effectively, which gives us much better results. Smart work beats hard work every time. Therefore, you must have seen some people in your offices are very effective in their work. They get their work done quicker than the others because they are well versed in their work and they try to increase their spectrum of knowledge every day. Even Abraham Lincoln said, "Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend 4 hours sharpening my axe." So to conclude, learning is the key to success. All the successful people has one thing in common, that they read a lot of books and learn new things from other people's lives, as their own life would be too short to gather all the experiences. And at last, if you like the video, hit So by this story, what we have understood that we should work smarter than hard working. Okay, now next is relationship between teaching and learning. There is relationship between teaching and learning. Without relationship, they both can't be go further. Both teaching and learning can be formal and informal. You are knowing the difference between formal and informal. Formal means at a particular place like school, colleges, but it is informal also. Everywhere we can, at a ground also, in library also, everywhere, at home also we can learn. Both are goal oriented. One can absorb teaching but not learning. हम टीचिंग को देख पाते हैं कि एक टीचर कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस समय ये पता ही नहीं चल, टीचर को पता नहीं चलता कि स्टूडेंट कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे. इसलिए हम लर्निंग को नहीं देख पाते, लेकिन टीचिंग को हमें देखने को मिल जाता है. गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग. अगर आप अच्छे टीचर हो तो अच्छे लर्नर को आप बना पाओगे. बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेट ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल. क्योंकि बिना स्किल, बिना क्रिएटिविटी या बिना इंटेलिजेंस के हम लर्निंग और टीचिंग को मतलब उसको पूरा नहीं कर पाते हैं. इसलिए हमें स्किल भी चाहिए कि आप कैसे पढ़ाते हो. अगर आप मान लो प्राइमरी टीचर हो और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप जूनियर स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि उनका वे ऑफ लर्निंग बहुत ही डिफरेंट होता है. इसलिए वो स्किल हमें होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि इन द जूनियर क्लासेस फर्स्ट दे एब्जॉर्ब द थिंग, देन दे आर गोइंग टू लर्निंग. अगर पहले वो देखेंगे नहीं तो वो समझेंगे नहीं. इसलिए पहले हमें वो स्किल हमारे मतलब हम सारे टीचर्स में होने बहुत ज़रूरी होती है. क्रिएटिविटी, यस इट इज़. अगर आप समझदार नहीं हो तो पढ़ाओगे कैसे. एंड ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत होता ही है. ये नहीं कि हम क्लास में गए और कुछ भी जाके पढ़ा के आ गए, ऐसा नहीं होता. हम क्लास में जाते हैं उसके पहले हम खुद को अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है.
Good teaching requires good communication skills and good learning requires good listening skills. Yes. अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अपने स्टूडेंट से तो आप जो पढ़ाना चाह रहे हो आप वो पढ़ा नहीं पाओगे, और अगर जो आप जिनको पढ़ाना चाह रहे हो अगर आपका वो बात ही नहीं सुने तो वो आपका वो भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए आपको अगर गुड टीचिंग आपको चाहिए तो आपको गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और अगर आपका लिसनिंग अगर आपको किसी को सुनना है तो आपको गुड लिसनर होना बहुत जरूरी होता है। ओनली गुड लिसनर बिकम गुड टीचर्स। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस whereas लर्निंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। मतलब टीचिंग सोशल प्रोसेस मतलब बहुत हम एक ग्रुप में टीचिंग को कर सकते हैं, लेकिन जब लर्निंग की बात आती है तो वो हमारा खुद का इंडिविजुअल बात होती है कि हम अकेले में वो चीज कितना सीख पाए हैं। बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग देयर इज मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट। हमेशा ये क्या होता है टीचिंग और लर्निंग में एक मूवमेंट होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम टीचर टुवर्ड्स द स्टूडेंट। Okay, now my main topic that was by teaching and learning style. So first I will discuss about the learning styles. Now before moving towards learning style, first we should know that what are learning style. Information enters your brain through three methods: sight, hearing and touch. The one which you use the most is called your learning style. मतलब जब भी हमारे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में तीन तरह से जाते हैं। एक आपका आईज, जैसे अभी आप लोग सब मुझे देख रहे हो क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं तो सबका नजर है मेरी ओर। दूसरा होता है हेयरिंग, यस, अगर हम सुनेंगे नहीं तो बातों को समझेंगे कैसे। और थर्ड वन इज साइट, देखना। तो जो आप अपने लिए आप ज्यादा प्रेफर करते हो खुद के लिए, दैट इज योर लर्निंग स्टाइल। अगर आपको अभी मेरी बातें सुनकर ज्यादा समझ में आ रही है तो आपका क्या कौन सा लर्निंग स्टाइल हुआ? हियरिंग। अगर आप देख के अगर जो प्रोजेक्टर में दिखाया जा रहा है अगर वो देख के आप समझ रहे हो तो दैट इज साइट। तो ये अलग अलग वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो या किससे ज्यादा आप समझ रहे हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ learners, learning style. First is visual learners, second auditory learners, and third one is kinesthetic learner. So visual, already we are knowing that visual by sight. We can learn by saying something. Auditory by hearing and kinesthetic by doing, by touching. Now first is visual learners. So in the visual learners, overall 65% of population प्रेफर विजुअल लर्निंग। मतलब हम ज्यादातर देखेंगे, हम देखते हैं कि लोग देख के ही ज्यादा समझते हैं या याद रखते हैं। अगर जूनियर क्लासेस हो उसमें भी आप जाओगे तो ज्यादा बच्चे, अगर आप प्राइमरी में अगर प्राइमरी क्लासेस में आप अल्फाबेट को बताने जाते हो तो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम अगर फॉर एग्जांपल एप्पल बता रहे, ए फॉर एप्पल, तो हम पहले क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं कि पहले वो बच्चे उस चीज को एब्जॉर्ब करें कि वो एप्पल होता कैसा है, तभी वो सीखते हैं कि ए फॉर एप्पल बोला जाता है। तो दैट्स व्हाट, तो लगभग 65% ऑफ पॉपुलेशन जो होते हैं वो देख के ज्यादा समझते हैं, सुनते हैं। ना प्रेफर टू सी इंफॉर्मेशन सच एज पिक्चर्स, डायग्राम, कार्टून्स और डेमोन्स्ट्रेशन। इस लर्निंग स्टाइल में क्या होता है, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं पिक्चर्स को देखना, कार्टून्स को देखना या किसी भी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन को देख के सीखना। माइंड गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ लेक्चर विथ नो विजुअल एड्स। तो ये बेसिकली अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है विजुअल ज्यादा नहीं होते हैं, तो लोग क्या स्टूडेंट क्या होते हैं बोर हो जाते हैं और उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो मतलब उस कंसंट्रेशन नहीं आता है, इसलिए उसमें यूज नहीं हो पाता है। Now benefit from using charts, map, notes and flashcards when studying. अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप मैप या चार्ट ये सब का अगर यूज करते हो तो स्टूडेंट बहुत इजीली क्या होते हैं वो चीज को सीखते हैं। Auditory learners prefer to hear information spoken. Yes, जब हम वो बोलते हैं तो वो सुनते हैं। Can absorb a lecture with little effort, may not need detailed notes to learn, often avoid eye contact in order to concentrate, may read aloud to themselves, like background music when they study. तो ऑडिटरी
मोस्टली लर्नर्स क्या करते हैं, सुन के बहुत चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि क्लास में स्टूडेंट हमारी बातों को नहीं, अगर उनका आई कांटेक्ट हमसे नहीं होता है तो हमें लगता है कि वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका आई कांटेक्ट भले हमसे ना हो लेकिन वो फिर भी हमारी बातों को सुनते हैं। ऐसे बहुत बार खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि जब बोल रहे हैं तो लगता है कि नहीं, स्टूडेंट नहीं सुन रहे, लेकिन अगर उससे क्वेश्चन किया जाता है तो वो आंसर हमें मिल जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा उनका आई कांटेक्ट होगा ही, अगर नहीं भी हो रहा है तो इसका मतलब वो उनका ज़्यादा क्या काम कर रहा है, उनका हियरिंग पावर है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए वो सुन के समझ रहे हैं। और वो खुद में बहुत, मतलब अगर उनको याद कुछ करना रहता तो बहुत ज़्यादा खुद में जोर जोर से बोल के, लाउडली बोल के वो याद करते हैं। और ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जब उनको कुछ स्टडी करना होता है, कुछ लर्न करना होता है, तो म्यूजिक को ऑन कर लेते हैं और वो पढ़ते हैं। Now, kinesthetic learner prefer touch as their primary mode for taking in information. In traditional lecture situation, they should write or important facts. Role playing might help them learn and remember important. तो kinesthetic means वो करके, लगभग only 5% of population can make kinesthetic learners. यहाँ ये होता है कि बहुत कम होता है कि लोग करते हैं या करके कुछ बताते हैं या सीखते हैं। यहाँ पर होता है कि यहाँ उनका प्राइमरी जो मोड होता है इंफॉर्मेशन का, वो टच करके या खुद से वो करके, तभी वो क्या करते हैं, उस जो हम बताना चाह रहे हैं वो उसको पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं। What are the different learning styles? Why is it important to know yours? Listen to this conversation and learn about the different learner types. Hey, what are you studying? I'm studying for my anatomy class. Your drawings look really good. Thanks. I'm a visual learner, so diagrams are helpful for me when I'm studying. That makes sense. I wonder what type of learner I am. I don't use diagrams so much, but I like writing a lot of notes and reading them to study. Sounds like you might be a verbal learner. You understand and explain ideas through reading, writing, and speaking. Interesting. What other types of learners are there? There are also auditory, logical and mathematical, and kinesthetic or physical learners. No type is better than any other. Different types of learners just prefer different activities or strategies to learn. Students learn in different ways. There are several different types of learners. They include auditory, visual, verbal, logical, and kinesthetic learners. Auditory learners like to learn by hearing. Visual learners like to learn by seeing. Verbal learners like to learn by reading, writing, and speaking. Logical and mathematical learners appreciate logic and systems. And kinesthetic or physical learners like to learn by doing. It is important for students and their teachers to know their learning styles. This way, they know which learning activities and strategies work best for them. For example, physical learners might benefit from models that they can interact with. And auditory learners might benefit from hearing spoken instructions. What type of learner are you? This is American English. Thank you for watching. So now we have discussed about the different types of learning style. But why all the styles are important for us? क्यों हमें अलग अलग स्टाइल चाहिए सीखने के लिए? So why learning styles are important? First, learn how we learn. हम सीखते हैं कि हमें कैसे सीखना है. Recognize our strength. हम अपनी ताकत को पहचानते हैं कि
क्या मेरा पावर है, कौन सा मेरा हेयरिंग पावर ज़्यादा है, लिसनिंग पावर ज़्यादा है, वो हम पहचानते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। नो व्हाट नीड टू इम्प्रूव। अगर मुझे लगता है कि देखकर हम ज़्यादा समझ रहे हैं लेकिन हम सुनकर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सुनने वाले पावर को भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, डेवलप गुड स्टडी स्किल। हमारे स्टडी स्किल को बढ़ाता है। अंडरस्टैंड डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। अगर हमारा लर्निंग स्टाइल, हम अपने लर्निंग स्टाइल को जानते हैं कि मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, तो हम टीचिंग स्टाइल पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। टीचर्स हु अंडरस्टैंड लर्निंग स्टाइल्स आर बेटर एबल टू अडॉप्ट देयर टीचिंग मेथड्स। एज अ टीचर हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारा जो लर्निंग स्टाइल क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग मेथड्स को भी ज़्यादा डेवलप कर सकें। वेरिड टीचिंग मेथड लीड टू मोर मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड लर्नर। अगर आपके पास बहुत सारा टीचिंग मेथड एक साथ आप अगर अप्लाई कर सकते हो, तो इससे आपका क्या होगा, ज़्यादा लर्नर्स को आप एंगेज और मोटिवेट भी कर सकते हो। स्टूडेंट हु नो देयर लर्निंग स्टाइल्स आर बेटर लर्नर्स एंड बेटर अचीवर्स। जिनको अगर हम सिखा रहे हैं, जो इनको लर्न करना है, अगर उनको अपनी लर्निंग स्टाइल के बारे में पता है, तो ज़्यादा अच्छा लर्नर्स भी बनेंगे और ज़्यादा अच्छा अचीवर्स भी बनेंगे। अपने लाइफ में जो उनका गोल है उनको वो अचीव कर पाएंगे। नाउ, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल हम केवल एक एकेडमिक एडवांटेज नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी एडवांटेज पहुंचाते हैं। ना द कोड ऑफ लर्निंग। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लर्निंग स्टाइल को देखा कि कुछ देख के होता है, कुछ सुन के होता है, कुछ बोल के होता है ना। ये है, अगर आप किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहे हो और अगर ये आप देख रहे हो, एक फोन है, रीडिंग, देन हेयरिंग, देन सेइंग, वाचिंग अ मूवी, और ये परसेंटेज दिया गया है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आफ्टर 2 weeks you can remember only 10%। if you are reading only 10% of that you can remember it, but with hearing you can remember 20%। if you are saying it, then 30%। if you are seeing and hearing both the action are going together, then 50%। if someone is saying you and then you are learning it, then 70%। but if you are someone is saying you and they are doing also, then 90% of that topic will be remembered after 2 weeks। Stop. Now it's activity time, so 2 to 4 teachers can come. Now I want to check your memory power, how much you can remember it। Okay, anyone can come. For 10 seconds I will show picture, in that picture items are given, so you have to remember it for 10 seconds. Only for the 10 seconds I am going to show it, and I will give you 1 minute for writing it. Okay, you have to write it. So only 2. Why it is so? 4 to 5 you can come. 4 to 5 you can come. With pen. I don't have pen. Only for 10 seconds. Yes, I am giving you paper. Pen you will have. Okay, only for 10 seconds I will show, okay, that picture. Hey, don't write. Stop. No. Don't write now. After 10 seconds you will First have to observe it. Yes, you have to Only observe it. Don't memory game. It is memory game. Okay. Shubham sir, represent the slide again, please. Wait. Again I am explaining.
10 सेकेंड तक आपको ये पिक्चर्स दिखाए जाएंगे. Okay, after 10 seconds you will start writing when I will tell you. Okay, and I will give only 1 minute for writing also. Okay, now it is clear? Okay. Everyone? Yes, sure. Yes. Time starts now. Start. Start. No one will say anything. And please write your name also on the paper. Write your name also. Don't help. No, this much I will. Time out. Time out now. Okay. Wait. Okay, exchange your paper. Exchange your paper. Everybody, exchange your paper. Achita ma'am, take it. Done? Okay. Wait, sir, wait. Now. So, everyone has paper? Okay. Whose paper it is? Priyanka ma'am? Okay. How many items name she has written? 8. Okay. 7. 4. 4. Sir? Rizwan sir? 7. 6. 6. Okay. Anyone from the audience who has written more than 10? More than 7. More than 8. 8 was highest, huh? 8 was higher. Anyone? No. More than 8. I'm asking more than 8. Okay. No one is there? No one is there? That is not valid, sir. That is not valid. Hard work Okay, is sir. more. Okay. Now they will match. Okay. Okay, you have to match it. Okay. Yes. 8 is right. Ma'am? So, चम्मच स्पून वैसे सवाल आ रहा है highest is 8. Okay. Clap for her. 8 and then 7. 7 or 6? 7 is a response also. 7. It's your and 7. Both are 7. You have also written 7. Both are really nice. अरे वो सबसे पहले सैलरी दी था हाँ ना मेरे पास 20 वाली सैलरी 8 वाला तो हाँ. Okay, now moving ahead, we have reached towards the teaching style. Now learning style has been done. Teaching style. What are teaching style? Our teaching style represent those enduring qualities and behavior that appear in how we conduct our classes. Thus, it is both something defines us that guides and directs our instructional processes and that has effect on students and ability to learn. Your teaching style is who you are as a person and as a teacher. हमारा टीचिंग स्टाइल होता है हमारे
अपनी जो इंडोरिंग क्वालिटीज होते हैं या बिहेवियर होते हैं उनको आगे करना है। हम अपने टीचिंग स्टाइल से अपने आप को अपने क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैसे हैं एज अ पर्सन एंड एज अ टीचर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ method, teaching method. First is lecture method. Lecture is the most common method of teaching. In this method, only teacher talks and students are passive listener. Yes. जो आपका लेक्चर मेथड होता है उसमें क्या होता है, टीचर्स लेक्चर देते रहते हैं, स्टूडेंट्स आर ओनली लिसनिंग. Since the students do not actively participate in this method of teaching, this is a teacher-controlled and information-centered method. It delivers a lot of information in a short amount of time. लेकिन ये इसमें बेनिफिट ये होता है, टीचर वो लेक्चर देते हैं, बेनिफिट ये होता है कि एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मोर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट. कम समय में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं. लेकिन ये एक नेगेटिव ये भी होती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू लिसन ओनली. So there are some advantage and disadvantage of every method. First, lecture method advantage: more information given in a short time, good for introducing a subject, correlate previous and new concept. More student can listen and prepare notes, can be repeated and modified. Advantage बहुत सारे हैं कि in a short of period of time we can give more information. दूसरा होता है कि एक किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए we have to use our lecture method. वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एनीथिंग. नाउ इसमें क्या होता है, हम प्रीवियस चैप्टर्स को भी कोरिलेट करते हैं. अगर हम लेक्चर मेथड में जाते हैं तो प्रीवियस चैप्टर को भी कोरिलेट करते हैं. और दूसरा होता है कि इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ disadvantage, some disadvantages are also there in the lecture method. More workload on teachers, lack of student participation, not good for all teachers, individual differences ignored, little check of understanding. Now इसमें क्या होता है कि teachers have the more work to do. अगर टीचर लेक्चर मेथड में खुद को प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो वो लेक्चर मेथड वो कंप्लीट नहीं होगा. इसलिए बर्डन बहुत ज्यादा होता है एंड इट इज नॉट गुड फॉर एवरी टीचर. ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पर्टिकुलर टीचर पर ही एक आपको ज्यादा फिट होगा, बल्कि सभी के लिए ये फिट नहीं होता है. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. Demonstration method is a teaching method used to communicate an idea with the aid of visuals such as charts, posters, PowerPoint, etc. It is a process of teaching someone how to make or do something in a step-by-step process. At school level, a teacher applies it in teaching science, biology, arts and craft. Demonstration means हम किसी चीज को भी करके दिखाए, वो फिजिकली उनमें इन्वॉल्व भी होते हैं. तो इसमें होता है कि वी हैव टू यूज विजुअल्स. सब स्मार्ट बोर्ड को यूज करके विजुअल्स दिखा के उनको समझाना. कभी होता है चार्ट्स पेपर के थ्रू. बेसिकली इन द साइंस वी आर यूजिंग चार्ट्स ओनली. देन पोस्टर्स एंड पावर पॉइंट. इन कंप्यूटर पावर पॉइंट्स वगैरह यूज करके लोग वो प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि क्या बोला जा रहा है. नाउ इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की डेमोन्स्ट्रेशन जब भी होता है, किसी चीज को फिजिकली वो करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस हम लोग जाते हैं. और ये अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं इन द साइंस, बायोलॉजी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. अगर आपको क्राफ्ट किसी चीज को बताना है तो बिना आप डेमोन्स्ट्रेशन का या स्टेप बाय स्टेप उनको बताए बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता है. Advantage and disadvantage of demonstration method. Utilize several senses. Student can see, hear and possibly experience an actual event. Present ideas and concept more clearly, provide direct experience, create interest, active student participation, child-centered approach. तो advantages क्या होते हैं demonstration method के? So student can utilize all their senses at a time. They can see also, they can hear also and they can participate also. Now more clearly, अगर किसी भी concept को
वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं इफ वी आर डूइंग दैट वर्क। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यस, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच, यस, इट इज स्टूडेंट ही उसमें सेंटर पॉइंट होते हैं, तभी वो डेमोन्स्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कॉस्टली मेथड इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइम कंज्यूमिंग, may limit participation, require pre-preparation, stressful for students। कॉस्टली मेथड, क्योंकि अगर हम साइंस को लेकर अगर बायोलॉजी को या फिजिक्स केमिस्ट्री अगर हम प्रैक्टिकल को करवाते हैं तो इट इज कॉस्टली, क्योंकि वी रिक्वायर सम apparatus, देन ओनली वी कैन कंप्लीट आवर एक्सपेरिमेंट, सो इट इज कॉस्टली। इग्नोर इंडिविजुअली ये इग्नोर क्यों होता है? क्योंकि वी हैव टू मेक ग्रुप, देन ओनली वी कैन डू आवर एक्सपेरिमेंट, सो it ignore individual differences। Time consuming, yes, it is taking time also for doing any experiment or any craft or art, we have to take some time। May limit participation and require pre-preparation for any activity or for any experiment, we have to pre-prepare ourselves। अगर पहले से हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो हम उस डेमोन्स्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। Now next is storytelling method। In this method, teacher present lesson in the form of stories। It provides children with a window to new world। It gives them opportunity to learn new ideas and information without realizing it। They learn valuable life lessons through hearing and engaging in exciting stories। It can be used as a method to teach ethics, values and cultural norms। स्टोरी टेलिंग बेसिकली इन द जूनियर क्लासेस किसी भी लेसन को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी वी कैन एक्सप्लेन। इसमें क्या होता है कि अगर स्टोरी है तो स्टूडेंट अपने आप को उस वर्ल्ड में, उस न्यू वर्ल्ड में अपने आप को इमेजिन करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को महसूस करते हैं कि हम उस जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए वो न्यू वर्ल्ड को एक न्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं ना। इस मेथड में अगर हम स्टोरी से हम बहुत सारे वैल्यूज को, बहुत सारे एथिक्स को स्टूडेंट तक इजीली पहुंचा सकते हैं। लाइक बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, जैसे यूनिटी के हमें बताना है तो स्टोरी होता है कि एक फादर है, उनके 4 बच्चे हैं, अगर एक अलग होता है तो कैसे मतलब उसमें यूनिटी नहीं रहती है तो वो अलग हो जाते हैं। अगर उनको एक साथ लाना है तो हम उनको यूनिटी का वैल्यू बता सकते हैं। बहुत सारे वैल्यूज, अगर सच बोलने से क्या होता है, तो ये सब सारे वैल्यूज थ्रू स्टोरी वी कैन टीच आवर स्टूडेंट्स। Now, advantage and disadvantage of storytelling method. Promote a feeling of well-being and relaxation. Increase children's willingness to communicate thoughts and feelings. Encourage use of imagination and creativity. Encourage cooperation between students. बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कि अगर आप किसी एक स्टोरी को क्लास में बता रहे हो तो स्टूडेंट क्या होते हैं, अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। दूसरा होता है वो बहुत उनमें एक चाहत होती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है स्टोरी में, एंड क्या होगा, इससे क्या हमें बेनिफिट है या क्या होने वाला आगे। नाउ एनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट। वो ये भी सीखते हैं कि हमारे बीच में कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, ये सब हम उनको सिखा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, लैक ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें स्टूडेंट को करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए इट इज अ डिसएडवांटेज। लेस क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाता है, बच्चे केवल आपका सुन रहे हैं कि आप स्टोरी को कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो, लेकिन दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है। Now, project-based method based on principle of learning by doing. Role of teacher is like a guide or a helper. ये भी आपका एक प्रोजेक्ट मेथड लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होता है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट है कि आप एक स्टूडेंट को आप प्रोजेक्ट दोगे और वो खुद से वो कंप्लीट करते हैं और टीचर विल बी एज अ
गाइड ओनली, एज अ हेल्पर ओनली। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर भी इंगेज होते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मेथड में जाओगे तो केवल वो हेल्प करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, लेकिन सारा वर्क जो करते हैं वो करते हैं आपके स्टूडेंट ही। एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड: डेवलप परमानेंट नॉलेज, develop thinking power, respect for dignity of labor, discourage rote memorization, practical knowledge, learning by doing। अगर प्रोजेक्ट वर्क होता है तो जो भी स्टूडेंट खुद से प्रोजेक्ट अगर वो बनाए हुए हैं, दे विल हैव परमानेंट नॉलेज फॉर एवर। वो उनके साथ हमेशा के लिए वो नॉलेज रहेगा, क्योंकि वो खुद से करके किए हैं तो उनके पास ये नॉलेज हमेशा के लिए रहेगा। ना थिंकिंग पावर भी, क्योंकि अगर उनको कुछ प्रोजेक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो वो उनके बारे में सोचेंगे कि हम इसको और कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, सो देयर थिंकिंग पावर विल आल्सो इंक्रीज। डिग्निटी ऑफ लेबर, उनमें ये अगर वो खुद से मेहनत करते हैं तो उनको पता रहता है कि मेहनत का वैल्यू क्या होता है, तो इसलिए ना प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से करते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज आता है कि वो कैसे काम और कब वो हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करेंगे तो सीखेंगे ही। Disadvantage of project-based method: time consuming, syllabus cannot be completed on time, expensive, requires highly experienced teachers, suitable for small groups only, neglect individual differences। Now, अगर project-based है तो it will take time to complete it। Syllabus, we can't cover syllabus on the project-based पे हम syllabus को complete नहीं कर सकते, it will not cover our syllabus। एक्सपेंसिव होते ही, अगर प्रोजेक्ट आप दिए हो स्टूडेंट बनाएंगे तो उनको थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ता ही है। टीचर्स, अगर हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं होंगे तो वो आपको स्टूडेंट को अगर वो सही से बताएंगे नहीं कि आपको क्या प्रोजेक्ट और कैसे बनाना है तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ना स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आएगी। और ये इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप्स ओनली, वी कांट टेक whole class in one project only, it will neglect individual differences। Now textbook method, next method is textbook method। In this method the content given in the textbook is according to the age of students। This method develops reading skills and correct writing skill। In this method teacher and students base depends on age and content level। तो यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट के एज के अकॉर्डिंग, अगर आप 1 क्लास के स्टूडेंट हो तो दैट बुक विल बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर एज ओनली। इफ दे आर फ्रॉम द 10th क्लास इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर एज ओनली। जो कंटेंट होते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू द एज ही होते हैं। और ये होता है कि इन दिस मेथड टीचर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो भी आपका कंटेंट या टीचर भी उसी लेवल के जाते हैं पढ़ाने के लिए, कि अगर प्राइमरी टीचर है तो वो लोअर क्लासेस में ही जाएंगे पढ़ाने के लिए, ताकि वो इजीली और ज़्यादा इजीली अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड: दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अ सिलेबस फॉर अ प्रोग्राम, they maintain quality, they can train teachers, they provide effective language model and input, they allow teacher to manage and organize the learning process more efficiently। Now advantage क्या होते हैं कि सिलेबस बहुत अच्छी तरह से, अगर टेक्स्ट बुक मेथड हम अपनाते हैं तो हम वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। अगर एक चैप्टर है, नेक्स्ट वी आर गोइंग, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग, तो वी हैव अ टाइम लिमिटेशन टू कंप्लीट आवर सिलेबस। Now maintain quality, yes, अगर आप बुक, अगर आप according to age you have, if you have taken the book, so it will maintain your quality also। Language, और ये this will require trained teacher। अगर आप टेक्स्ट बुक मेथड में जाते हो तो they will require trained teacher कि उस जो आप सिलेबस है या जो बुक में दिया हुआ है वो अच्छी तरह से स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाए। Disadvantage of textbook method: the content may not be appropriate to your group, the content may not be at the right level, there may not be the right mix of activity, the activities may be boring, the material may go out of date। अगर टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू द एज नहीं हुआ तो वो बोरिंग हो सकता है, उसमें अगर एक्टिविटी या जो आप सिलेबस जो इनकम्प्लीट होता है तो ये आपका मटेरियल
मटेरियल गो आउट ऑफ लेवल भी जा सकता है, इसलिए होता है दिस आर द डिसएडवांटेज। अगर राइट लेवल पर नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अगर आप टेक्स्ट बुक को अवेलेबल नहीं करवाते हो तो क्या होगा, दिस विल नॉट वर्क। नाउ असेसमेंट टाइम। Okay, everyone be seated. Learning is a natural activity of learners, individual, living organism. Living organism, yes. Learning may be formal, informal, both. What is the compulsory element of learning? Ability to read, bright mind, tendency to know. Primary teachers should try to or concentrate in raising intellectual standard of the student, improving physical standard of the student, help all-round development of students. Yes. The main aim of classroom teaching is to give information, help student to only pass the examination, to develop the personality of the students. In teaching, which of the following is a challenge for a teacher? Prepare a question paper, maintain discipline to make teaching learning enjoyable. In teaching learning process, which of the following are dependent variable? Students, principal, teachers. Students. A suitable method of teaching primary class children is lecture method, playway method, project method. If a teacher finds a problematic child in the classroom, what should he do? Ignore the child, punish the child, provide counseling to the child. Co-curricular activities are mostly related to mental development of student, all-round development of student, professional development of student. All-round development of students. Teacher, now one message from my side. Teacher helps student find important things they have lost every day. Sometimes it is paper, backpack or jacket, other time it is courage, confidence or a smile. Now thank you.